ऑल ऑफ यू। कल हमने डील किया था रियल फोर्सेस, जिसकी 4 कैटेगरीज थी: ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये डिस्कस कर लिए थे हमने कल। इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम का भी मतलब हमने समझा दिया था। व्हाट यू मीन बाय इनर्शियल फ्रेम इज frame of reference in which Newton's laws of motion are applicable, उसको ऐसा बोलेंगे। और नॉन इनर्शियल का मतलब यह होता है laws of motion are not applicable in non inertial frame। और एक बात है, in non inertial frame object will suffer, object will have acceleration in absence of the net force। force act नहीं कर रहा है, फिर भी the object gets accelerated। जैसे मैंने कल आपको और एक बात बता दी थी, inertial frame का मतलब होता है it is non accelerated frame। और एक बात है, non inertial का मतलब होता है they are accelerated frame। I think this is very clear। Newton's laws of motion are applicable here, and it is here it is not applicable। अभी हम important concept introduce करने वाले हैं, real force and pseudo force। और उसको डील करने से पहले contact forces के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि exactly what you mean by contact forces। contact force, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब क्या होता है कि 2 पार्टिकल्स इन स्पेस, दोनों के बीच में कांटेक्ट भी अगर नहीं होता है तो वन पार्टिकल कैन एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द अदर पार्टिकल। 2 चार्जेस है, इलेक्ट्रिक चार्जेस, बोथ ऑफ देम आर सेपरेटेड, दे आर नॉट इन कॉन्टैक्ट, बट इवन देन वन चार्ज कैन एक्सर्ट फोर्स ऑन द अदर चार्ज। इसको आप बोलेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब ये होता है, in this particular case the forces result when the 2 bodies are in contact। the forces come into play only when there is contact between the 2 bodies। मैं रिपीट कर रहा हूं, contact forces का मतलब क्या होता है, it is only when the forces which result only when there is contact। अब जैसे contact forces के बारे में मैंने क्या बोला है, non contact force के बारे में say 2 particles at a distance, they are not in contact, even then one particle can exert a force on the other particle, ये हो गया non contact। but at the same time 2 objects अगर contact में रहते हैं, even then the force of gravitation will be existing between, force of gravity definitely रहेगा। कांटेक्ट में है, कांटेक्ट में नहीं है, इट कैन एक्सर्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन कांटेक्ट फोर्स का मतलब क्या होता है, दीज फोर्सेस रिजल्ट ओनली व्हेन द 2 बॉडीज आर इन कांटेक्ट। दीज फोर्सेस रिजल्ट ओनली व्हेन द 2 बॉडीज आर इन कांटेक्ट। ये बेसिक डिफरेंस है। नॉन कांटेक्ट फोर्स में कैसा है, कांटेक्ट में नहीं भी रहा तो इट कैन एक्सर्ट फोर्स, और कांटेक्ट में रहने के बाद तो फोर्स एक्सर्ट करते ही है। लेकिन कांटेक्ट फोर्स का डिफरेंस कैसा है, it will result only when the 2 bodies are in contact। contact forces basically they are electromagnetic in nature, and जैसा अभी उदाहरण के तौर पे reaction force, this is contact force, force of friction, this is also contact force, and forces which result due to collision। 2 पार्टिकल जब कोलाइड होता है, they'll start moving in the opposite direction or in the same direction depending on the situation, but the forces which result due to collision they also belong to the same category, that is contact forces। और एक बात समझ लीजिए, contact forces में say I'm standing on this platform here, I'm exerting force on the platform in the downward direction away from me, and the platform is exerting force in the upward direction away from the platform।
ये दोनों फोर्सेस कैसे हैं? दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, उसको हम रिएक्शन फोर्स बोलेंगे। तो प्रिसाइजली व्हाट इज हैपनिंग व्हेन आई एम स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म? The platform is exerting, I am exerting force on the platform in the downward direction away from me. The platform is exerting force on me in the upward direction away from the platform. तो ये क्या action and reaction हो गया along the same common normal. ये दोनों forces कैसे act कर रहे हैं? They are acting in the opposite direction away from each other. इस प्रकार से हम बोल सकते हैं So when two bodies are in contact में जब आते हैं two bodies, when two bodies come in contact, while exerting mutual force, they exert force away from each other. They exert force away from each other along the common normal. तो मेरे ख्याल से ये उदाहरण सबसे बेस्ट है। The force, मैं जो force exert कर रहा हूँ प्लेटफॉर्म के ऊपर in the downward direction away from me, the platform is exerting force in the upward direction away from the platform. Action and reaction इसको आप बोलेंगे contact force. So well, when you are in contact, it results. Force of friction भी contact force ही है। दो bodies के बीच में relative motion अगर रहता है या there is a tendency of motion, तो force of friction comes into play. फर्क समझ लीजिए। If two bodies are in contact, there is no force of friction. लेकिन जब उसको मोशन देने की कोशिश करेंगे या this has a tendency to move, it has a tendency to move, then force of friction will come into play. In fact, this is what tangential component of the normal reaction, tangential component of the normal reaction. Well, anyway, इसको आप बाद में अपन डील करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से the meaning is very clear of what exactly we mean by contact force and non-contact force. Well, अभी जो concept जो मुझे introduce करना है, it is real force and pseudo force. सिचुएशन किस प्रकार की है देख लीजिए आप। अगर आप लिफ्ट में खड़े हैं, द लिफ्ट इज एट रेस्ट, लेट अस सपोज, एंड when the lift accelerates upward, velocity उसकी बढ़ रही है, तो हमको लगता है कि वजन हमारा बढ़ गया है। When the lift starts moving in the upward direction, आपको लगता है कि you have been pulled downward. You feel that your weight has increased. The same lift, when it is deaccelerated, टॉप फ्लोर पे जाने के बाद let us say नीचे जा रही है with some acceleration, और let us say on the top उसकी वेलोसिटी कम होते जा रही है, this is negative. तो ऐसे कंडीशन में हमको लगता है जब द लिफ्ट स्लोज डाउन, हमको लगता है कि हमारा वजन कम हो गया है, या लिफ्ट जब नीचे आती है तो इन द सेम वे वी फील that the weight has reduced. Now why does this happen? ये तो फीलिंग आती है, आप बोलेंगे it is just a feeling. It is not like that. The force is not imaginary in the sense. अब एक काम की बात समझ लेंगे आप, आपके पास एक वेइंग मशीन है, वेइंग मशीन के ऊपर में आप खड़े हैं, when the lift is at rest, आपका नॉर्मल वेट आ रहा है 50 kg वेट मान लेते हैं। जब लिफ्ट ऊपर जाती है विद एन एक्सीलरेशन ए, आपका वजन बता रही है 55 kg वेट। लिफ्ट जब नीचे आती है तो आपका वजन उसने 45 डिग्री पर 45 kg वेट उसने बताया। तो व्हाई डज दिस हैपन नाउ? व्हेन द लिफ्ट मूव्स अप, व्हेन इट इज रेस्ट, आपका नॉर्मल वेट पता है 50 kg।
जब ऊपर जा रही है तो वजन कितना होता है 55, नीचे आते हो 45. Why does the weight increase here and here it is decreasing? And this can be actually recorded by the weighing machine. और एक दूसरी बात समझ लेंगे, ऊपर जाते वक्त इंक्रीज, नीचे आते वक्त देयर इज अ डिक्रीज. अगेन और एक बात समझ लेंगे अभी आप, इन अ बस which is moving with a uniform velocity, all the passengers with respect to the frame of the bus, they are at rest. बस की स्पीड अगर बढ़ती है, if the bus gets accelerated, what happens? You get an acceleration in the backward direction. अब प्रॉब्लम यहां पर ऐसा है, you're getting acceleration in the backward direction. Newton's second law is this: if F is equal to 0, then acceleration आपका 0 ही रहनी चाहिए. बट यहां पर सिचुएशन कैसी है देख लीजिए. The situation is F is equal to 0, but what is happening? A is not equal to 0. बस ने अपनी स्पीड जब बढ़ा दिया, you got accelerated in the backward direction. फोर्स अप्लाई नहीं हुआ आप पर, no force has been applied on you. फोर्स अप्लाई नहीं होने के बाद भी आप पीछे की तरफ गए. तो दिस इज, इसका मतलब ये होता है कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज नॉट वैलिड, क्योंकि यहां पर फोर्स 0 रहने के बाद भी गॉट एक्सेलरेटेड. बोले न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स अगर रहेगा तो एक्सेलरेशन आनी चाहिए, लेकिन यहां पे रिवर्स में हो गया. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग हियर. और एक बात, when brakes are applied to the bus, स्पीड बस की कम हो रही है, तो you are thrown in the forward direction, you got accelerated in the forward direction. यहां पर भी फोर्स किसने अप्लाई नहीं किया आपका, no force has been applied, but even then you got accelerated in the forward direction. अब प्रॉब्लम ऐसा है that if you can measure these forces by using some device, हम ये बोलेंगे इन फोर्सेस के बारे में. पहली बात, we can measure it. ये तो वेइंग मशीन से आपने मेजर कर लिया है. The first point to be noted here is, यहां पर the forces are not real. The forces are not real in the sense, हमने जो रियल फोर्सेस की जो 4 कैटेगरीज बनाई थी, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स and weak nuclear force, they do not belong to any of these categories. So the forces are not real. This is there. It is not imaginary. Not imaginary बोलने का रीजन ही ये है, we can measure it. It can be measured. It is not imaginary in that sense. And Newton's second law of motion is not applicable. Newton's second law is not applicable. ये 3 बातें अभी यहां पर आती हैं. बस के केस को मैं रिफर कर रहा हूं. बस जब एक्सीलरेट हो गई, you got acceleration in the backward direction. बस ने स्पीड कम कर दिया, ब्रेक्स अप्लाई किया, you got accelerated in the forward direction.
ये जो भी एक्सीलरेशन, जो फोर्स जो फील किया आपने, फोर्स फील किया, वो इमेजिनरी नहीं है इन द सेंस यू कैन मेजर इट. न्यूटन सेकंड लॉ इज नॉट एप्लीकेबल, ये तो हमने डिस्कस कर लिया. और किसी भी वो कैटेगरी जो है रियल फोर्सेस की, उसको दे डू नॉट बिलोंग टू दिस कैटेगरी. सो ये 3 पॉइंट्स आते हैं. तो व्हाट वी डू, वी रिफर टू दीज फोर्सेस एज सूडो फोर्स. सूडो फोर्स का मतलब ये नहीं होता इट इज इमेजिनरी. उसका मतलब ये होता है दे आर नॉन रियल. सूडो फोर्स का मतलब ये नहीं होता दे आर इमेजिनरी, इट इज नॉन रियल. इतना ही बोलेंगे हम उसको. सो वेल, कमिंग टू दिस, और एक बात जो समझ में आनी चाहिए, बस when it got accelerated with acceleration equal to a, this force is measured to be equal to minus ma, because बस जब एक्सीडेंट होंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, आप पीछे की तरफ आ गए, इसलिए हमने नेगेटिव साइन वहां पे लिख दिया. ये फोर्स को क्या बोलेंगे, दिस फोर्स इज इक्वल टू माइनस ma, और आप बोलेंगे व्हाट इज a, आप ए बोलेंगे एक्सीलरेशन ऑफ द रेफरेंस फ्रेम. एक्सीलरेशन ऑफ द रेफरेंस फ्रेम इन द सेंस कैसा है कि इट इज द फ्रेम ऑफ द बस. द बस गॉट एक्सीलरेटेड एंड दिस फोर्स, जिसको हम बोल रहे हैं सूडो फोर्स, कितना रहेगा यहां पर, माइनस ma. टू रिमेंबर दिस. तो इस फोर्स को मेजर करने का तरीका कैसा है, आप बोलेंगे इट इज इक्वल टू माइनस ma. आप बोलेंगे फोर्स कितना है, माइनस ma, और आप बोलेंगे व्हाट इज a, is acceleration of the non-inertial frame. ऐसा भी बोलेंगे, there is acceleration of non-inertial frame, acceleration of accelerated frame, acceleration of the frame of reference. तो मैं रिपीट कर रहा हूं, फोर्स को कितना मेजर किया, माइनस ma, and what is a is acceleration of the non-inertial frame or the frame of reference, which will put it this way. Coming to this position of the lift here, जब लिफ्ट ऊपर जाती है, there is increase, नीचे आते वक्त there is a decrease. लिफ्ट की स्पीड बढ़ना, लिफ्ट की स्पीड कम होना, and it is an accelerated frame. लिफ्ट की स्पीड बढ़ना है, कम होने का मतलब इट इज एन एक्सीलरेटेड फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम. न्यूटन लॉ हम अप्लाई कर सकते हैं वहां पर. बट व्हाट कैन बी डन टू द नेट फोर्स, इसको अच्छे समझ लेंगे. टू द नेट फोर्स वी ऐड दिस. टू द नेट फोर्स अगर आपने माइनस ma को ऐड किया, तो we can apply Newton's second law in non-inertial frame. मैं रिपीट कर रहा हूं, देख लीजिए आप. बस accelerated forward, the person in the bus, in the frame of the bus, they got accelerated in the backward direction. तो ये फोर्स कितना है, माइनस ma है. आप बोलेंगे व्हाट इज a is acceleration of the frame of reference, acceleration of the frame of the bus. तो what is done here, और ये जो acceleration है, मैंने बताया कि it is not imaginary, it can be measured. Newton's second law is not applicable, it is not real, non-real है. So what is done now, so that you can apply Newton's second law to the net force, we add this force here, pseudo force जिसको हम बोलेंगे. We add this force, pseudo force, so that you can apply Newton's second law of motion. It can be done that way. तो ध्यान रखें कि pseudo force कैसा रहता है, opposite to the real force. बस का एक्सेलेरेशन आगे की तरफ है, pseudo force in the backward direction. So net force we add that quantity there, minus ma, so we can apply
न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। लिफ्ट के केस में मैं फिर आता हूं। अब लिफ्ट जब ऊपर जाती है तो pseudo force will act in the downward direction. Weight is acting in the downward direction. So the net reaction आपको मिलेगा mg प्लस ma। मैं रीजन बता दे रहा हूं, अभी बहुत ज्यादा डिस्कशन में नहीं जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम को समझ लेंगे आप। लिफ्ट ऊपर जा रही है, pseudo force in the downward direction. This is down और ये दोनों डाउन। लिफ्ट ऊपर के जब जाएंगे तो pseudo force कैसा रहेगा? नीचे की तरफ रहेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स डाउन, pseudo force डाउन, इसलिए मैंने ऐड कर दिया दोनों को। तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वेइंग मशीन कितना रहेगा? mg प्लस ma। और जितना फोर्स आप एक्सर्ट करेंगे उतना आपको रिएक्शन मिलेगा। सो आर इज द रिएक्शन देयर। बहुत डिटेल में तो नहीं जाएंगे, लेकिन वेइंग मशीन आपको मेजर क्या करता है? मेजर्स रिएक्शन। मेजर्स व्हाट? रिएक्शन। इट मेजर्स रिएक्शन इन द सेंस, जैसे आप वेइंग मशीन के ऊपर में खड़े हैं, आपने फोर्स एक्सर्ट किया उसके ऊपर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, and the weighing machine will give you reaction in the upward direction। उसी को उसने मेजर किया। In this particular case, when the lift is moving up, pseudo force is acting in the downward direction। तो आपने नेट फोर्स कितना अप्लाई किया? mg भी अप्लाई किया, ma भी अप्लाई किया आपने। तो फोर्स एक्टिंग ऑन द वेइंग मशीन इज इक्वल टू mg प्लस ma। सो रिएक्शन कितना मिलेगा? दैट मच, और वही उसको मेजर करेगा। प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका मैं बता रहा हूं, बाकी की चीज के ऊपर ध्यान नहीं देंगे अभी। नेक्स्ट, व्हेन द लिफ्ट मूव्स डाउन, व्हाट हैपेंस? लिफ्ट जब नीचे की तरफ आती है विद एन एक्सीलरेशन a, रिएक्शन इज precisely what is happening? The pseudo force is acting in the upward direction. Now weight is acting in the downward direction, pseudo force is acting in the upward direction। इसीलिए आप ध्यान में रखेंगे यहां पर दिस इज डाउन और ये अप, तो रिएक्शन कितना मिलेगा? mg माइनस ma। दैट इज द रिएक्शन विच इज ऑब्टेन्ड। Pseudo force के बारे में इतना सोचेंगे आप, इट इज नॉट इमेजिनरी, इट कैन बी मेजर्ड, इट इज डेफिनेटली नॉट इमेजिनरी। इट इज नॉन रियल, मींस रियल फोर्स जिसको आप बोल रहे हैं उस फोर्स के कैटेगरीज को बिलोंग नहीं करता है। न्यूटन सेकंड लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। डायरेक्शन में से pseudo force के ऑपोजिट टू द रियल फोर्स। फोर्स इज एक्टिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, pseudo force in the backward direction। लिफ्ट जब ऊपर जाती है, it is an accelerated frame, pseudo force will act in the downward direction। weight down, pseudo force down। तो लोड कितना है मशीन के ऊपर में? mg प्लस m। लोड कितना? mg प्लस m है, तो उतना रिएक्शन मिलेगा, वैसा लिखा हुआ है। लिफ्ट नीचे आती है, pseudo force up, weight is acting in the downward direction, pseudo force is acting in the upward direction। so ये दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, so this is the reaction। so force on the weighing machine will reduce because आपने force apply किया mg in the downward direction and pseudo force is acting in the upward direction, तो weight थोड़ा सा कम हो गया, it has become less by mg। उतना रिएक्शन उसको करेंगे, which will do this। so when ये स्पेशली आइडियाज याद रखेंगे आप, इस पर बेस्ड अभी कुछ प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व करूंगा एंड वी विल सी हाउ टू प्रोसीड फर्दर। एक और बात मैं इसी रिलेशन में पॉइंट आउट करूंगा आपको। लिफ्ट जब ऊपर जाती है, लिफ्ट इज मूविंग इन द अपर डायरेक्शन एंड व्हाट इज हैपनिंग? द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग वेलोसिटी का मतलब होता है ए इज नेगेटिव, याद रखेंगे। इवन दो द मोशन इज इन द अपर डायरेक्शन, even though the motion is in the upward direction, the velocity अगर डिक्रीज होगी तो a is negative, तो उसी साइन को हम वहां पे लिखेंगे।
साइन कौन सा लिखेंगे, इसको ऐसा करेंगे आप। ये पॉजिटिव और नेगेटिव पे डिपेंड करेगा अल्टीमेटली। वेल स्पेशली साइन कन्वेंशन के बारे में डिस्कशन जब प्रॉब्लम आएगा तभी अपन डिस्कस करेंगे। एक दूसरा तरीका भी इसको डील करने का, बट नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस सूडो फोर्स जिस प्रकार से अपने कंसिडर किया है उसके बेसिस पे ठीक है। लास्ट व्हेन द लिफ्ट मूव्स इन द अपर डायरेक्शन विद एक्सीलरेशन a, सूडो फोर्स इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, वेट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, सूडो फोर्स सेम डायरेक्शन में, इसलिए हमने दोनों को ऐड कर लिया। When the lift has negative acceleration in the upper direction, it has negative acceleration in the upper direction का मतलब क्या होता है? The velocity is decreasing. और velocity जब decrease होती है, pseudo force कौन सा डायरेक्शन में रहेगा? The pseudo force will be in what? In the downward direction. velocity कम कर रहे हैं, जैसे बस में velocity कम होती है, तो what happens? When the bus velocity of the bus decreases, you are thrown in the forward direction. तो यहां पर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये फोर्स कहां पर एक्ट करेगा? देयर इज अ डिक्रीज इन वेलोसिटी। जब आपकी बस इज गोइंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसने ब्रेक्स अप्लाई किया, उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, एंड द वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में डिक्रीज हो रही है, in fact you are moving in the same direction। जब ब्रेक्स अप्लाई करेंगे तो आप आगे की तरफ जाएंगे, ब्रेक्स अप्लाई करने से आप आगे की तरफ गए। यहां पर भी लिफ्ट ऊपर जाते हुए उसकी स्पीड कम हो रही है, तो व्हाट विल हैपन? सूडो फोर्स विल बी इन द सेम डायरेक्शन, वेट इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, द सूडो फोर्स इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, इसलिए क्या लिखा हमने? mg minus ma। So well, as a rule, just remember, बहुत ज्यादा बातें याद रखने की जरूरत नहीं है। यहां पर mg में आपने ऐड किया when a is positive, subtract किया when a is negative, that will do।